Hello friends, this is Tarun Kumar Sharma and I'm back again today with the same topic I taught you the day before yesterday, the notice writing. That day actually we discussed about the structural formatting, how to format a notice either on any subject, how is it formatted, that day we discussed about it. But today we are going to discuss about some different kind of notices, how to write them, how to format them. This one is an example written before you on the board, is an example of losing something when somebody actually I'll try to be bilingual. अगर स्कूल के टाइम बस में आते जाते टाइम अगर आपकी कोई चीज़ खो जाती है या आपको कोई चीज़ कहीं आते जाते मिलती है, दैट केसेस ऑफ लॉस्ट एंड फाउंड. तो लॉस्ट एंड फाउंड के भी नोटिस आपने न्यूज़पेपर में भी देखे होंगे, पार्क्स में भी लगे हुए देखे होंगे, स्कूल में भी आपने देखे हुए होंगे. तो लॉस्ट एंड फाउंड के जो नोटिस होते हैं किस तरह से लिखा जाता है, मैं आज आपको लॉस्ट एंड फाउंड का डिफरेंटली एक एक एग्जांपल कराऊंगा जिससे आप लोग लैंग्वेज को अच्छे से समझ सको. इनके अलावा एक दो टाइप्स और मैं आप लोगों को बताऊंगा. कुछ टाइप्स मैंने आप लोगों को उस दिन अपनी वीडियो में बताए थे. कंटेंट्स मैं जब मैंने दिया था आपको डिस्क्रिप्शन में, मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करने के लिए दिए थे. दैट इज योर होमवर्क. ओके, दिस इज एक्चुअली अ नोटिस बट अनदर डिफरेंट काइंड. तो मैं दो तीन एग्जांपल अलग अलग तरह के कराऊंगा और उस बेसिस पे फिर आप लोगों को आगे होमवर्क दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में. As I told you that if you are having any kind of doubt or confusion, then you can get them fixed with your concerned teachers. So I think you would have done. Okay, let's start. So this one is the question before you. The question is, you are Arnav. The name of the writer of the notice will already be given in the question. You have to mind it. The name of the writer of the notice will itself be given in the question. If not given, then you can't write your name here. You have to use as usual X, Y and Z. Here the name is given, so you have to use there the name of the writer. So you are Arnav, a student of class 12th in DAV Hathras. That day when I told you while the closing of the notice that you have to write here the name as well as the designation. But designation matters when an officer or an official person is giving you the notice. But this notice is to be written by a student. So a student has no designation and he is not going to write here a student. So you have to mention his or her class as well as the section so that you can easily find him or her. So the question is, you are Arnav, consider you are Arnav, a student of class 12th in DAV Hathras. DAV Hathras के class 12th के आप एक student हो. You have lost your notes of chemistry during recess. स्कूल रिसेस आवर जो होता है, उस रिसेस आवर में जैसे हम लंच आवर भी कहते हैं, उसमें आपके केमिस्ट्री के नोट्स गुल हो गए थे, मींस मिस हो गए थे, लॉस्ट हो गए थे. तो उस बेसिस पे उस पर्पस से आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करना है. मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट कर दिया. आई हैव शॉर्टन द क्वेश्चन. इसमें मैंने आप लोगों को वर्ड लिमिट के बारे में कुछ नहीं बताया. इसमें मैंने आप लोगों को कि क्लास और स्कूल मैंने बता दिया है, इस जगह खोए थे, किस जगह खोए थे, कहाँ खोए थे, कैसे खोए थे, वो मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन में नहीं बताया. इवन मैंने यहाँ पे सिर्फ एक बॉय का नाम दिया हुआ है. जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें बॉय एंड गर्ल के नेम डिफरेंटली आपको मिलेंगे. तो फिलहाल क्वेश्चन समझना है. वर्ड लिमिट एज यूजुअल, एज आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो दैट यू हैव टू कवर 50 to 60 words, but you can proceed them up to 65 or 70, but not more than that. Okay. Now we have to start. As I told you, first of all you have to write the name of the institution with its address, the city name. DAV is the school name, Hathras is the city name. This is the small but the institution as well as the address. Then notice in the capital writing, I told you writing NOTICE, spelling and capital writing will definitely help you or be beneficial for you for the in the examination for getting the marks. Then in the third line, you have to write the date. The format of the date is before you, and I told you that day also. Now the title of the notice. One more thing, this is not compulsory कि मैंने पहले नोटिस लिखा फिर डेट लिखी है और फिर टाइटल सब्जेक्ट लिखा हुआ है. कई टीचर्स आपको ऐसे भी बताएंगे या फिर कई वीडियोस में या फिर कई सारे वेबसाइट पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि नोटिस डेट से नीचे वाली लाइन में होता है, डेट ऊपर होती है, और कभी कभी ये जो सब्जेक्ट होता है वो भी ऊपर होता है, डेट सबसे नीचे होती है. सो द फॉर्मेट में वेरी.
लेकिन दिस वन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्मेट। तो वही मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश की है। सो केमिस्ट्री नोट्स लॉस्ट, आपको मैंने बताया था जो सब्जेक्ट की वर्ड लिमिट होगी, टाइटल की वर्ड लिमिट होगी, वो 3 to 6 वर्ड्स, उससे ज्यादा प्रोसीड नहीं होनी चाहिए, एक्सीड नहीं करनी चाहिए। केमिस्ट्री नोट्स लॉस्ट आप यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हो। इस टाइटल को 3 तरीके से लिखा जा सकता है। आप सिर्फ लॉस्ट लिखना चाहते हो, देन यू कैन लॉस्ट, लॉस्ट एंड लॉस्ट। यू कैन राइट लॉस्ट 3 times एट द टाइटल। इस तरह से भी आप लिख सकते हो। लॉस्ट को आगे भी ले सकते हो, लेकिन इट मस्ट बी क्लियर कि आखिर जो चीज है वो खोई हुई है, इट इज लॉस्ट। तो यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लाइन, इट इज टू बी इन्फॉर्म्ड टू एवरीबॉडी। अब चूंकि ये नोटिस ऑफिशियल नहीं है जिसमें हम ये बताएं कि ऑल द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स आर काइंडली इन्फॉर्म्ड या काइंडली गिवन द इंफॉर्मेशन, सो ये एक स्टूडेंट की तरफ से रिक्वेस्ट की जा रही है, इस वजह से हम यहाँ पे सिर्फ इस सिंपल से सेंटेंस का यूज करेंगे। इट इज टू बी इन्फॉर्म्ड टू एवरीबॉडी दैट आई हैव लॉस्ट माय नोट्स ऑफ केमिस्ट्री। मैंने आप लोगों को बताया था दैट डे you have to use 3 questions which you have to answer here। तो पहले what have you lost? I have lost my notes of chemistry when today during recess। This is the whole time, today during recess। Now where? In the school library। इससे क्लियर पता चल जाता है कि स्कूल में जब लंच आवर था, लाइब्रेरी के टाइम जब लंच ओवर हुआ था, वहां पे किसी के नोट्स रह गए थे, तो उसने पूरी कंडीशन यहाँ पे बता दी, जिससे जो रीडर होगा, जिससे मिला होगा, जो फाइंडर होगा, वो अच्छे तरीके से समझ सके। आगे थोड़ा सा बढ़ते हुए हम यहाँ पे, क्योंकि लॉस्ट एंड फाउंड एक ऐसी चीज होती है जहां पे जब तक हम आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं देंगे तब तक हम उस चीज पे ओन नहीं कर सकते, तब तक हम उस चीज को क्लेम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए एक मार्क तो देना पड़ेगा। तो अ रेड कलर्ड फोल्डर विद माय नेम ऑन इट कंसिस्ट ऑफ द नोट्स। जो नोट्स मैंने खोए थे वो नोट्स ओपन नहीं थे, वो एक फोल्डर में रखे हुए थे, और वो जो फोल्डर था वो रेड कलर का था, और उस फोल्डर के ऊपर मेरा नेम लिखा हुआ था, क्लियरली विजिबल विल बी देगा। तो यहाँ पे मैंने एक आइडेंटिफिकेशन मार्क बताने की कोशिश की है कि एक रेड कलर का फोल्डर है, उस पर मेरा नाम लिखा हुआ है, और उसी में मेरे नोट्स रखे हुए। नाउ ही इज मेकिंग एन अपील, he is making the appeal to the finder। Anyone who finds them, this is the commonly used line। जब कभी भी lost का नोटिस लिखा जाता है, this is the commonly used line कि anyone who finds them, अगर किसी को ये मिल जाते हैं, प्लीज गिव देम टू मी। गिव की जगह आप रिटर्न भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने देम लिखा हुआ क्योंकि नोट्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। अगर आपकी कोई एक चीज खो जाती है तो वहां पे आप इट यूज करोगे। सो माइंड द यूज ऑफ नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके हिसाब से हम यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे चूंकि कोई चीज आपकी खोई है, फाइंडर किस बेसिस पे आपको वापस करेगा, कुछ ना कुछ तो एज ए रिवॉर्ड उसको आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक कॉमनली हम यूज करते हैं अ टी पार्टी एंड फ्रेंडशिप। ये इजी तरीका होता है बताने का। अ टी पार्टी एंड फ्रेंडशिप आर प्रॉमिस्ड। एक टी पार्टी आपको दी जाएगी और फ्रेंडशिप का भी प्रॉमिस आपसे किया जाता है। तो ये सिंपल फॉर्मेटेड लैंग्वेज में एक नोटिस है जो लॉस्ट के लिए कॉमनली यूज होता है। अगर आपकी रिस्ट वॉच खो जाती है, सिमिलर थिंग विल बी देयर, सिमिलर थिंग। अगर आपने स्कूल में कोई चीज नहीं खोई, सपोज आपने बस में राइड करते करते कोई चीज खो दी, तो भी आपको यहाँ पे बिल्कुल यही लाइन यूज करनी है, दैट आई हैव लॉस्ट माय रिस्ट वॉच या वॉलेट या लेदर बेल्ट, जो भी आपकी चीज खोई हुई है। टुडे व्हाइल, जब आप बस से वापस आ रहे होगे, तो व्हाइल ड्राइविंग बैक इन द बस, उस बस का नंबर अगर आपको याद है तो ठीक है, नंबर याद नहीं है तो फिर आप बस हरियाणा रोडवेज है, यूपी रोडवेज है, किस जगह पे आपने खोई थी, वो प्लेस और व्हेन कब खोई थी, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये नॉर्मल यूज्ड लैंग्वेज है जिसे आपको समझना है, ठीक है। अब मैं इसके बाद आपको एक दूसरा क्वेश्चन विद इट्स आंसर देने वाला हूं। तो लॉस्ट के बेसिस पे आप और भी एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर सकते हो। अब मैं आपको फाउंड का भी देने वाला हूं। The another example of lost and found is of found condition. In this question, the question is, you are Arnav, a resident of Uttam Nagar Society, Aligarh. Alright? Today while walking you found a wristwatch in a public park of your locality. The question is saying कि आप अर्नव हो, इस सोसाइटी में रहने वाले हो, और जब आप वॉकिंग कर रहे थे अपने पब्लिक पार्क में, सोसाइटी के पब्लिक पार्क में, तो आपको वहां पे एक रिस्ट वॉच मिली थी जो
आपको किसी को रिटर्न करनी है। तो यहाँ से नोट द ड्राफ्टिंग द नोटिस has the different conditions, has the different formattings। तो आप यहाँ देख रहे होगे and drafting the notice depends on the question। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, नो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन इज गिवन हियर। ना तो यहाँ किसी इंस्टीट्यूशन का नाम है, ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ना किसी क्लब का नाम है, ना किसी ऑफिस का नाम है, ना किसी कंपनी का नाम है। ये एक कॉमन पब्लिक नोटिस है। तो यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन के नेम प्लस सिटी नेम देने की ऐसी कोई जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि द नोटिस बोर्ड इज इन द पार्क एंड द पार्क इज इन द एरिया ऑफ द सोसाइटी। सो एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी नो वेरी वेल कि ये सोसाइटी के लिए ही है। तो हमने यहाँ पे सबसे ऊपर ऑर्गेनाइजेशन प्लस सिटी नेम नहीं लिखा, दैट डजंट मैटर। नोटिस सीधा सीधा लिख दिया, दैट इज इन कैपिटल लेटर। उसके बाद डेट फॉर्मेट की हुई है हमने। जिस तरह से लॉस्ट का हमने टाइटल लिखा था उसी तरह से फाउंड का टाइटल यहाँ लिखा जाएगा। लॉस्ट का मैंने बताया था कि तीनों जगह आप तीनों मार्जिन्स में लिख सकते हो। इसी तरह से फाउंड भी 3 जगह आप लिख सकते हो, लेकिन दिस इज द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग। ठीक है, तो यहाँ हम सिंपली इस लैंग्वेज से स्टार्ट करेंगे। इट इज बीइंग इन्फॉर्म्ड टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। अब सोसाइटी के सारे मेंबर्स को हमें ये इंफॉर्मेशन देनी है कि that while walking in the public park, what, when and where। 3 क्वेश्चन का हमें जवाब देना था। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, और इससे पहले जो लॉस्ट वाला एग्जांपल मैंने आपको कराया उसमें भी बताया। व्हाट, व्हेन एंड वेयर का जो अरेंजमेंट होता है कि पहले वर्ड का जवाब देना होता है, दिस इज नॉट कंपलसरी। पहले आप व्हेन का भी रिप्लाई कर सकते हो, वेयर भी आ सकता है, व्हाट का सबसे बाद में भी कर सकते हो, एज गिवन इन द क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए, दैट while walking, दिस इज द टाइम। while walking, वो मॉर्निंग इवनिंग का जो टाइम था, दैट इज नॉट मेंशन्ड हियर, नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो हमने वो यहाँ पे मेंशन किया भी नहीं है, बिकॉज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो while walking in the public park, पब्लिक पार्क में मैं वॉकिंग कर रहा था। अब वॉकिंग का ऐसा कोई टाइम पीरियड वैसे मॉर्निंग इवनिंग होता है, लेकिन पब्लिक पार्क है हमारी सोसाइटी में, दोपहर में गर्मी लगती है, घूमने चले जाते हैं, दैट डजंट मैटर। तो while walking in the public park, so when and where मुझे क्या मिला था, what I found a gent's wristwatch। मैंने 3 आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे बताए हुए हैं। एक तो मैंने बताया कि जेंट्स रिस्ट वॉच, डेफिनेटली दैट इज बिगर इन द साइज, बिगर इन साइज देन द वंस व्हिच आर मेड फॉर द लेडीज। तो जेंट्स रिस्ट वॉच। दूसरा मैंने आइडेंटिफिकेशन बताया, इट इज गोल्डन इन कलर। तीसरा मैंने बताया कि रेड स्ट्राइप। अब सारे आइडेंटिफिकेशन नहीं बता दूंगा तो एवरीबडी इन द सोसाइटी विल बी एबल टू क्लेम फॉर द रिस्ट वॉच, लेकिन कुछ इसके आइडेंटिफिकेशन और रह जाते हैं जो उसे देने। मैंने सिर्फ इसलिए दिया है कि जिस व्यक्ति के पास ऐसी वॉच होगी जिसमें रेड स्ट्राइप है, या जिसके पास ऐसी है जिसमें गोल्डन कलर प्लस रेड स्ट्राइप है, तो वही व्यक्ति क्लेम कर पाएंगे, स्पेसिफिक पीपल क्लेम कर पाएंगे। बाकी अब मैंने आगे इसमें लिखा है द रियल ऑनर ऑफ इट। इस घड़ी का जो रियल ऑनर है वो मिस्टर राकेश कुमार। चूंकि मैं अपनी तरफ से कोई भी हेडेक अपने पास नहीं रखना चाहता, तो मैं चूंकि हमारी सोसाइटी के सारे अफेयर्स, ऑल द अफेयर्स ऑफ आवर सोसाइटी आर बीइंग हैंडल्ड बाय आवर सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी, तो मैंने उनके पास इसे जमा कर दिया, दे दिया। और जो भी इसका रियल ऑनर है, इसकी जो बची हुई प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन है, नेम ऑफ द कंपनी, डायल किस कलर का है, तो और भी कुछ हो सकता है स्ट्राइप की जगह कुछ चैन वगैरह, जो भी हो, द अदर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन व्हिच आर रिमेनिंग टू गिव, तो वो देके वो जो फाइंडर है वो इसे जो जिसने लूज की है, जिसकी ये घड़ी है, जो ओनर है इस घड़ी का, वो इसे रिसीव कर सकता है। उसके बाद नेम यहाँ पे दिया है मैंने, जो जिसने नोटिस लिखा हुआ है। उसके बाद चूंकि इस नेम वाले पर्सन की, अर्नव की यहाँ कोई डेजिग्नेशन नहीं है, ही इज जस्ट अ मेंबर या फिर ही इज जस्ट अ रेजिडेंट ऑफ द सोसाइटी, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ उसका एक मेंबर एज अ रेजिडेंट लिख दिया है और यहाँ सोसाइटी का नेम लिख दिया है। एक चीज और बताना चाहूंगा कि कंटेंट से ठीक पहले, कंटेंट के ठीक बाद 1 लाइन का गैप रखना था, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो। इसके अलावा वी हैव टू इंक्लोज इट इन द रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो इस तरह से हमारे नोटिस की मैंने पिछले वीडियो में भी कराए थे, आज भी कुछ एग्जांपल्स मैंने करा दिए, तो 10 हमारे लगभग सारे व्यू जो हैं वो कंप्लीट हो चुके होंगे। सो आप लोग अपनी तरफ से और प्रैक्टिस कीजिए, एंड लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू।